Hello, all of you. Welcome back. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikuhabad. Today we are here to continue our series on class 11th NCERT Geography, Physical Geography. This book we are referring to currently, and we are on the last part of our first chapter. We have already completed few parts in the previous videos. If you have not seen that, please complete those videos and then refer to this one. I hope all of you are doing great and you are taking care of yourself and your family. In the yesterday's class, we were studying about the branches of geography pertaining to physical geography, human geography, biogeography, and the regional approach in which we studied about GPS, GIS, regional planning, analysis, everything. Today we would be dealing with a specific portion, and that is our book. This book, which we are going to study this year, is that physical geography. And what is the importance of physical geography? Why is there a need to study physical geography? Why is it so important for you and for me, for everybody, to know about the basic concepts of physical geography? So the name, as already the name suggests, the fundamentals of physical geography. So it is very important that we study the scope of this book. So clearly this is a very important branch of geography, but how is it an important branch is what matters. So physical geography, now there are a lot of words in the upcoming section, so I would be explaining each and every word in detail, so please pay attention. Physical geography includes the study of lithosphere. First is your lithosphere. What do you understand by lithosphere? Lithosphere means everything which is related to land, which is related to फ्लोर और ज़मीन से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. And in terms of lithosphere would be studying about landforms. What are landforms? In the previous class also I've told you that landforms are the different forms of land. For example, lakes, ponds, mountains, plateaus, plains, oxbow lakes, all these things, waterfalls, all these are your glaciers, glacial tills, all these are your moraines, all these are your landforms. Then we would study about drainage. Now, by drainage, it does not mean the drainage system which is outside your house. By drainage, it means the rivers in your country, the rivers in your locality around you, which provides resources and water, most probably water and other mineral resources, biodiversity, aquatic animals to us. Then we will be studying about relief and physiogeography. What do you understand by relief? This relief, mountainous relief का मतलब होता है the area, how is it? It is landform की बात करते हैं generally हम relief के case में. तो what is the relief of the area? Then we will be studying about atmosphere. So अभी what is the definition of atmosphere? आपके आसपास की जो भी air है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और एटमॉस्फेयर होल्ड किसकी वजह से होता है? अर्थ में हवा क्यों है, एयर क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ? आप सबको पता होगा, ग्रेविटी होती है अर्थ में, हम खड़े हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. आप ये जो बॉटल है ये इस तरह से पड़ी है इज ड्यू टू ग्रेविटी. यू आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर बिकॉज आपको अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है जो होल्ड करके रखता है. सिमिलरली वही ग्रेविटेशनल पुल आसपास में हवा को, एटमॉस्फेयर को भी होल्ड करके रखता है. एंड नॉट जस्ट एटमॉस्फेयर, मून है आपका, सैटेलाइट्स जो यहाँ से कंट्रीज छोड़ती हैं, ये सारी चीज़ें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होल्ड होकर रहती हैं. सो एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे उसकी कंपोजिशन. व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन इज इसमें क्या क्या है, कैसे कंपोजिशन हो रही है. स्ट्रक्चर में जैसे आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, इस तरह से पूरे स्फेयर्स होते हैं हवा के, एयर के भी, एटमॉस्फेयर के भी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एलिमेंट्स मतलब हम एयर में क्या क्या होता है, कौन सी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, all these gases, argon है, neon, several gases are there in the earth's atmosphere. So we would be dealing about those elements. कंट्रोल ऑफ वेदर, एटमॉस्फेयर की वजह से वेदर पे क्या फ़र्क पड़ता है. बहुत तेज़ हवा चलती है, स्लो हवा चलती है, तो उससे वेदर पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट पे क्या फ़र्क पड़ता है.
कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे हम, टेम्परेचर यानी कि जो तापमान होता है. देन वी वुड बी डीलिंग अबाउट द प्रेशर. नाउ व्हाट इज प्रेशर? Pressure, now if there is, this is the bottle, this is my hand, this is stable on my hand because of the gravitational pull which is coming from the earth and which is coming from my body, और ये इसीलिए मेरे हाथ में खड़ी हुई है. बट बिकॉज देर इज वाटर इन दिस बॉटल, ये मेरे को भारी लग रही है. कोई भी चीज़ आपके हाथ पे होती है तो वो आपको हैवी लगती है. सिमिलरली जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ ने होल्ड तो करके रखा हुआ है, बट इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन अर्थ, बट इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन अर्थ. तो ये जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, व्हाट इज दिस, हाउ इट इज, वाई ये प्रेशर क्यों है, और इस प्रेशर के होने से व्हाट आर द फिनोमिनाज विच इज रिलेटेड टू इट. विंड्स के बारे में हम देखेंगे. देयर आर टेम्पररी विंड्स, देयर आर परमानेंट विंड्स, लैंड ब्रीज होती है, सी ब्रीज होती है, सेवरल टाइप ऑफ विंड्स होती हैं, उन सब की स्टडी करेंगे हम. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश. तो हम सब ने साइंस में पढ़ा हुआ है, पानी का ऊपर जाना इज नोन एज इवेपोरेशन, पानी का क्लाउड्स में फॉर्म होना इज नोन एज कंडेंसेशन, क्लाउड से पानी का नीचे आ जाना इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नोफॉल इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. सो हम प्रेसिपिटेशन को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. बारिश भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है. तो एक बारिश जो माउंटेन्स में होती है वो अलग तरीके की होती है, साइक्लोन्स की वजह से बारिश होती है वो अलग तरीके की होती है, पहाड़ों की वजह से जो बारिश होती है दैट इज डिफरेंट. सो देयर आर 3 or 4 टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स विच वी वुड बी स्टडिंग इन दिस सेक्शन. वी वुड बी स्टडिंग अबाउट क्लाइमेट टाइप्स. मानसून, इंडिया का क्लाइमेट इज मानसून टाइप क्लाइमेट है. मानसून के हिसाब से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है. देयर आर क्लाइमेटिक रीजन्स इन वर्ल्ड. एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, चाइना टाइप क्लाइमेट होता है, इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट होता है. सो ये सारे क्लाइमेट के कुछ हर क्लाइमेट का देयर इज अ बेसिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है जो उस क्लाइमेट को दर्शाता है. कैरेक्टरिस्टिक के अलावा कुछ जानवर होंगे जो उस क्लाइमेट में बेस्ट सूटेबल होंगे, कुछ पेड़ पौधे होंगे, वेजिटेशन होंगे जो उस क्लाइमेट में बेस्ट सूटेबल होंगे. सो वी वुड बी स्टडिंग अबाउट दैट एज वेल. इसके अलावा नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो मतलब कल भी बताया था, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर. तो हाइड्रोस्फेयर में हम ओशंस की स्टडी करेंगे. ओशंस, आप देखो अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ ओशन इज वाटर. तो वाटर में क्या होता है, पानी हमें सामने से तो बस पानी दिखता है, उसके अंदर क्या है, अंदर भी लैंड फॉर्म्स होते हैं. वाटर के अंदर भी प्लेन एरिया होता है, वाटर में भी प्लेट्यू होते हैं, प्लेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ लैंड फॉर्म्स इनसाइड द ओशन एज वेल. तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, सीज के बारे में पढ़ेंगे. ऑल दीज एसोसिएटेड फीचर्स विद हाइड्रोस्फीयर वी वुड बी डीलिंग इन दिस बुक. Then comes biosphere. बायो में जनरली लाइफ रिलेटेड जो फिनोमिनाज होते हैं वो पढ़ते हैं. लाइफ फॉर्म्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे, इकोलॉजिकल फूड चेन के बारे में देखेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स वी वुड बी स्टडिंग. देन कम्स ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे. फिर सॉइल कैसे फॉर्म होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ फॉर एवरीथिंग, हमारी मिट्टी कैसे बन रही है, हाउ इज़ इट फॉर्मिंग. सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, पेडोलॉजी बोलते हैं. और सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस, तो पेडोजेनेसिस मतलब सॉइल के बनने के प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं. अभी सॉइल बनने के लिए देयर आर वेरी सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर parent rock, climate, biological activity and time. Parent rock, climate, biological activity and time. So these are the 4 components which are required for pedogenesis. So अभी ये क्या है, parent rock क्या होता है, आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो तो जनरली आपसे अज्यूम किया जाता है कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आपके जो बिहेवियर होंगे, इट वुड बी सिमिलर टू योर पेरेंट्स. तो क्या है पेरेंट रॉक. सिमिलर इज द केस विद सॉइल. जो सॉइल होती है, जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो हम उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका पेरेंट रॉक क्या था, या पेरेंट रॉक अगर हमारे पास होती है तो उससे हम ये स्टडी करते हैं कि इससे जब सॉइल बनेगी तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. पेरेंट रॉक बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रिक, एक ईंट टूटेगी तो उससे रेड सॉइल बनने के चांसेस हैं, लेटेराइट सॉइल बनने के चांसेस हैं. सिमिलरली
क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल बहुत कंटिन्यूसली रेनफॉल होता रह रहा है आपके आसपास के एरिया में, तो जो सॉइल होगी वो काफ़ी लोमी और बहुत पतली सॉइल होगी, फुल ऑफ वाटर होगी। बहुत कम बारिश होती है, बहुत हार्ड टाइट ड्रॉट में बहुत टाइट सॉइल्स हो जाती हैं, वैसी होगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो इफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दो ज़मीन के टुकड़े लोगे, एक में आपने बहुत सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रखे हैं और एक खाली पड़ी है, धीरे धीरे करके जो खाली वाली फील्ड होगी वो बंजर ज़मीन में टर्न हो जाएगी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब पेड़ पौधे, जानवर, ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं सॉइल की टाइप को। नेक्स्ट इज योर आई टाइम बहुत मैटर करता है। कितने टाइम से पड़ी हुई है, कितने टाइम से कितना टाइम लग रहा है सॉइल को बनने के लिए। फॉर एग्जांपल टाइम से सॉइल में मेच्योरिटी आती है और ये हमको हेल्प करता है सॉइल प्रोफाइल बनाने में। आप अगर ज़मीन में एक वर्टिकल गड्ढा खोदेंगे, मतलब इस तरीके से अगर आप ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे की लेयर है उसमें बहुत मोटी मोटी पत्थर वाली मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी छोटे पत्थर हो रहे हैं और छोटे कंकड़ हो रहे हैं, फिर थोड़ी बहुत मोटी मोटी मिट्टी है, ऊपर आते आते एकदम फाइन सॉइल हो जाती है जो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हो। तो इससे टाइम पता चल रहा है कि हाँ ये बहुत पहले की है और ये जो ऊपर की है ये काफ़ी रिसेंट है। ईच एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग के लिए सारे एलिमेंट्स, सॉइल्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेन्स आर यूटिलाइज, जो लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पे वो भी कैसे इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। जो प्लेन एरियाज होते हैं, आपका जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, हमारे जो गंगा का एरिया, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, और थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये जो सारे रीजन हैं यहाँ ये एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। बहुत हाई स्केल पे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है क्योंकि एक सिंपल प्लेन ज़मीन मिल जाती है आपको एग्रीकल्चर करने के लिए। प्लेट्यूज पे जनरली फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, मिनरल्स मिलते हैं हमको प्लेट्यूज पे। क्यों मिलते हैं मिनरल्स हमको प्लेट्यूज पे? क्योंकि प्लेट्यूज जनरली किसकी वजह से बनते हैं? वोल्केनोस की वजह से बनते हैं, या फिर एक्यूमुलेशन की वजह से बनते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होगा, छोटी छोटी मिट्टी इकट्ठी होती रहेगी और बड़ा सा प्लेट्यू बना देगी। तो जनरली इन प्लेट्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल कंटेंट, फॉसिल कंटेंट हमको मिलता है। माउंटेन्स में से हमको पास्चर्स मिलता है, फॉरेस्ट होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट, टूरिज्म का बहुत अच्छा सेक्टर होता है माउंटेनियस रीजन्स में। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आर हाउस, ये आपको सब चीज़ें बता रहे हैं। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट आपके घर के टाइप्स को, घर के टाइप्स कैसे, आप अगर पहाड़ों में कभी घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो घर होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो इस तरह से होती है। क्यों होती है? ताकि बर्फ़ अगर आए तो नीचे चली जाए, रुकी ना रहे वहाँ पर। और जो जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे क्या करा जाता है? स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? मतलब ये चार चीज़ें, चार ऐसे आपने लिए, ऐसे डंडे लगा दिए जाते हैं, इनके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि घरों के अंदर पानी ना भर जाए। देन क्लोथिंग टाइप, आप बहुत ठंडे इलाके में रह रहे हो तो आप मोटे कपड़े पहनोगे। जनरली आप गर्मियों में रह रहे हो तो हल्के वाइट क्लोथ्स पहनना पसंद करते हो आप। फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा, इफ़ यू आर लिविंग इन कोल्ड रीजन्स, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, यू वुड बी प्रेफरिंग ईटिंग मीट एंड चिकन एंड फैटी फूड्स। और आप अगर नीचे के एरियाज़ में रहोगे जहाँ पे आपको इतने फैटी फूड्स की ज़रूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा वर्क एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सो यू वोंट हैव दीज काइंड्स ऑफ फूड। देन क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट। क्लाइमेट सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं बट वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। माउंटेनियस रीजन में आपको कुछ खास क्रॉप वगैरह होती हुई नहीं दिखेगी ठंडे की वजह से। क्रॉपिंग पैटर्न, लाइव स्टॉक फार्मिंग, इन सारी चीज़ों पे, इवन इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है। आप वुलन की इंडस्ट्री यूपी में खोल दोगे तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी, बट वही वुलन की इंडस्ट्री इफ यू विल ओपन इन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, देयर वुड बी अ ब्लूम इन दैट बिकॉज देयर इज़ अ डिमांड फॉर दैट। Then comes temperature and precipitation. Temperature एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर करता है कि हमारे फॉरेस्ट, अभी फॉर प्लांट्स एक नॉर्मल टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। नॉर्मल नेचुरल टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट इज़ वाई। और besides temperature it needs water, so temperature which will provide a good association, and another is precipitation, that is the rainfall. So both these
कंट्रीब्यूट टू दी फॉरेस्ट टाइप्स, ग्रासलैंड्स कैसे हैं। इंडिया में जो मॉनसूनल रेनफॉल है उसकी वजह से एग्रीकल्चर में एक रिदमिक मोशन बना रहता है। हम जैसे हमारे एक टाइम बहुत सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, हर तरह का मौसम हमको मिल रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतनी वैरीड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कर पाते हैं। देन इज़ योर प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स हैं, ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स यानी बारिश जब गिरती है, अभी यू कैन सी इट इज़ रेनिंग वेरी हेविली, सो बारिश से क्या होगा, जो मिट्टी होती है वो सब पानी को सोख लेती है और इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इन्हांस होता रहता है, ग्राउंड वाटर में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, विच लेटर प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। हम ओशियंस की स्टडी करते हैं जिसमें इन्यूमरेबल रिसोर्सेज हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ वहाँ पे डिफरेंट लाइव्स, बहुत बहुत सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं। फिश और अदर सी फूड के अलावा उसमें मिनरल रिसोर्सेज हैं। मैंगनीज नोड्यूल्स क्या होता है, पानी की वजह से बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं इनको, जो मिल जाते हैं और बहुत बहुत इनमें बहुत एनर्जी होती है नोड्यूल्स में, बट ये आपको एकदम ओशन बेड्स में मिलते हैं। ओशन बेड्स का मतलब एकदम ओशन की डेप्थ पे आप चले जाओगे तब जाके आपको वो नोड्यूल्स मिलेंगे, बट इनमें बहुत एनर्जी होती है, एंड कंट्रीज आर ट्राइंग टू गेट दीज नोड्यूल्स ऑन दी सरफेस एंड यूज देम। इंडिया ने भी कोशिश करी है, हम भी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और इसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर होता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The study of geography is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources. तो जो geography पढ़ाई जाती है आपको, ये इसलिए बताई जाती है ताकि आपके आसपास जितने भी natural process हो रहे हैं, पहली चीज़ आप इनको समझें कि ये हो कैसे रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, and the second thing is you manage these processes. If even one process changes or does not happen the way it should, it leads to several other problems. For example, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल फीचर्स, बिटवीन द फिजिकल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बींग्स, ये रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। अगर ह्यूमन बींग्स ज़्यादा काम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे एक इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, एंड विच इज़ नॉट गुड, और उस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण हम ही को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, नॉट एनी अदर पर्सन। सो फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इफ़ वी वुड ट्राई टू हार्म और change our physical environment, physical processes which are happening around us, it would have a negative impact on us human beings. There is a box there which is saying what is geography. So we would be reading about the definition of geography. What is geography? Geography is concerned with the description and explanation of areal differentiation of the Earth's surface. What does this mean? Geography explains the areal differentiation, area wise the difference on the Earth's surface को geography दिखाती है. This is given by Richard Hartstone. Another definition is geography studies the differences of phenomena usually related to different parts of Earth's surface. So different parts of Earth's surface, what are the different phenomena which are there? That is given by geography, and this is given by Hetman. So these are two important definitions. हमने पूरे chapter में we have read a lot of other definitions as well. If you think that there is some other definition which you would like to answer or write down, which is very good. But if the question asks specifically about write the definition given by Richard Hartstone, so you would have to remember this. So with this we are done with chapter number 1. Chapter number 1 was more of a theoretical chapter, but the upcoming chapters of this book is completely practical based. So please go through this chapter once again, and if you have any doubts and queries, please feel free to ask in the comment section, or you can message me or personal message me and ask in the, even you can ask in the chat section provided in your school website.
So in this chapter, we have studied the relationship. What is geography? How is geography important? Who gave the term geography? How should we study geography? There is a systematic approach. There is the regional approach. We studied the different disciplinary nature of geography. That how different disciplines, history, polity, economics, all of these subjects are included in geography. Then we have studied about the branches. Physical geography, may we studied. Geomorphology, climatology, hydrology, soil geography. With human geography हमने social cultural geography, population geography, economics geography, historical geography और political geography की study करी. In biogeography we studied about plant geography, zoo geography, ecology, environmental studies. Regional में हमने GIS, GPS की बात करी. And we have studied how all these subjects are somehow related to geography. हम geography के कितने concepts को पढ़ सकते हैं with the help of different subjects, and with the help of geography हम बहुत सारे subjects की study कर सकते हैं. We studied about dualism between human beings and फिजिकल नेचर. हमने टेक्नोलॉजी को देखा कि किस तरह से विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज अ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और humans have started over exploiting the physical processes. So with this we conclude this first chapter of your book Physical Geography. From tomorrow we will be starting with another chapter. Thank you. Have a nice day.